Everyone, it's me Prerna, and our today's topic is synthetic fibers and plastic. And this is chapter 3rd of class 8 science. Okay, and if you remember, in class 6th, you have studied about the plant fibers, and in class 7th, you have studied about the animal fibers. Okay, so these both were the natural fibers. Okay, so in this chapter, we will read about synthetic fibers that are man made. Okay, synthetic fibers or man made fibers. And if you do not remember what are plant fibers and how we get fabrics from them and what are animal fibers, then you can watch those videos, okay, of class 6th and class 7th chapter 3. Okay, so this is chapter 3rd of class 8, that is synthetic fibers and plastics. Synthetic fibers means the fibers that are man made, that are made by man with the help of chemicals. Okay, that are made by chemicals. These are not plant or animal products. And we'll read about the plastics, what are plastics and how these are useful and how these are harmful to us. Okay, so let's start. So we'll see the introduction first. So the clothes which we wear are made of fabrics, that everybody know. Okay, the fabrics are made from fibers obtained from natural or artificial sources. Okay, the natural sources are plants and animals, and the artificial sources we'll see in this chapter. So the fibers are also used for making a large variety of household articles. Fibers are not only used for making clothes or fabrics, we can make large variety of household articles also with the help of fibers, that we will see in this chapter. Okay, so the natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. Okay, natural fibers are obtained from plants or animals, and the synthetic fibers on the other hand are made by human beings. These are man made. Okay, these are made by men, and these are made with the help of chemicals. Okay, so that is why these are called synthetic or man made fibers, because these fibers are made by men, so these are called synthetic fibers. Okay, so that was the introduction. So now we'll see the definition. What are the synthetic fibers? I already told you, the fibers that are made by men, these are called synthetic fibers. But the question is how these fibers are made. What is the structure of these fibers? So let's see. See, a synthetic fiber is a chain of small units joined together. Okay, chain of small units. There are small units. Okay, when these units join to form long chain, this is called that's how synthetic fibers are made. So you can see the picture of a bracelet here. You can see there are many small beads here, right? And when these beads are joined, this make a big chain. So in the same way, synthetic fibers are made. Small units join to make big chains. Okay, and each small unit is a chemical substance. While making a synthetic fiber, what is that small unit? That small unit is a chemical substance, and that small unit is called a monomer. Mono means one. Okay, one single unit. To make synthetic fiber, that single unit is called a monomer. Okay, when these monomers or one single units combine to form long chains, that long chain is called polymer. Okay, poly means many. Okay, so each small unit is actually a chemical substance. Many such small units combine to form a large single unit, that is called a polymer. Okay, and the word polymers, that is it is a Greek word. Poly means many and mer means part or unit. So a polymer is made up of many repeating units. Okay, many repeating units, those single units, and these are called the monomer. Okay, polymers occur in nature also. See, polymer is always not a synthetic substance. It occurs in nature also. Like if we will talk about the cotton that we have read in class 6, cotton is a plant fiber. So cotton is also a polymer of cellulose. Okay, many small units of cellulose, okay, make a chain of cotton, and cellulose is also made up of many small units. These are the glucose. Okay, when glucose molecules combine, they make up cellulose. So like this, cellulose is also a
we can say it is also a polymer, and cotton is made from the cellulose. Okay, types of synthetic fibers. Okay, synthetic fibers are those that are man-made, and what are the fibers that are made by man till now? These are rayon, and nylon, polyester, and acrylic. So one by one we will read about these artificial fibers. So let's start with rayon. What is rayon? See, you must have heard about silk. Silk is obtained from silkworm. Okay, silk fiber is obtained from silkworm, cocoon of silkworm, right? And it is an animal fiber. But silk इज़ वेरी कॉस्टली. ओके, सिल्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है. एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड इट. ओके, सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, बिकॉज सिल्क हर कोई अफोर्ड कर नहीं सकता, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ह्यूमंस हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या डेवलप किया? रेयन को डेवलप किया. जो रेयन की प्रॉपर्टीज़ है, दीज आर हाईली सिमिलर टू द सिल्क. रेयन जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिल्क के जैसी ही होती हैं. ठीक है, इसीलिए रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है. द सिल्क दैट इज़ मेड आर्टिफिशियली, दैट इज़ कॉल्ड रेयन. ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड artificial silk. Okay, so rayon is a fiber obtained by chemical treatment of wood pulp. वुड पल्प जो होता है ट्रीज से लेते हैं और फिर उसको केमिकली ट्रीट करके क्या बनाया जाता है? रेयन बनाया जाता है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क. रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, राइट, बट इट इज़ नॉट मेड इन नेचर, राइट, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर. ओके, सो it is cheaper than silk and can be woven like silk fibers. Why it is important? Because it is cheaper than silk. Okay, it can also be dyed in wide variety of colors. बहुत सारे कलर्स में हम इसको डाई कर सकते हैं. एंड इट कैन बी मिक्सड विद कॉटन ऑल्सो, जिससे बेड शीट्स बनाई जाती हैं. ठीक है, और वूल के साथ मिक्स कर देंगे अगर इसे हम, तो उससे कारपेट्स बनाए जाते हैं. ओके, सो इस तरह से फाइबर्स को हम मिक्स करके एक तीसरे तरह का फाइबर भी हम डेवलप कर सकते हैं. ओके, so next fiber is artificial, that is nylon. जो आपकी सोक्स होती हैं, ठीक है, दीज आर ऑफ नायलॉन. आपने पैराशूट देखा होगा. ठीक है, ये भी जो होता है, ये जो इसकी रस्सियाँ हैं, ठीक है, इसको भी, ये भी क्या है, नायलॉन की बनी हुई होती हैं. अगर आप ये माउंटेनियरिंग की जो ये है, ठीक है, इसको भी आप देखोगे तो ये भी क्या होती है, नायलॉन की बनी हुई होती है. ठीक है, सो लेट्स रीड अबाउट नायलॉन. इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट एनी natural raw material. Okay, see, if we talk about rayon, so it natural material is used in that, right, that is wood pulp. But nylon सबसे पहला ऐसा फाइबर है जिसमें कोई भी नेचुरल मटेरियल यूज़ नहीं किया गया. कोई भी प्लांट मटेरियल या कोई भी एनिमल मटेरियल इज़ नॉट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नायलॉन. ओके, ये किससे बनाया गया? व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, वी कैन से व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स? दीज आर कॉल वाटर एंड एयर. नो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट, कॉल वाटर एंड एयर. एंड इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर मीन्स पहला ऐसा फाइबर है जिसमें कोई भी प्लांट मटेरियल या एनिमल मटेरियल को यूज़ नहीं किया गया. ओके, अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें नायलॉन मटेरियल की, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिसिटी होती है इसमें, और लाइट वेट होता है. ठीक है, इट्स लस्ट्रस मतलब चमक होती है इसमें, एंड इट इज़ ईजी टू वॉश. ओके, सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स. इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हाईली एक्सेप्टेबल है. ओके, we use many articles made from nylon. What are the articles that are made from nylon? These are socks, ropes, tents, toothbrushes, car seat belts, sleeping bags, curtains. Okay, these things can be made from nylon. And nylon is also used for making parachutes and ropes for rock climbing. A nylon thread is actually stronger than a steel wire. Because of this strength, it is used to in the rock climbing also, and to make parachutes also, because it has so much strength in its fibers. Okay, so next is polyester. Our next fiber is polyester. So we'll see what is polyester and what are the properties. See, I told you poly means many,
right? And ester is a chemical compound that is basically a hydrocarbon. So when many ester units, ठीक है, these are the small units which act as monomer. Okay, so if many ester units combine to form a big chain, दैट इज़ कॉल्ड अ पोलिएस्टर फाइबर. ओके, सो छोटी छोटी एस्टर की यूनिट्स कंबाइन करती हैं और एक बड़ी चेन बनाती हैं जिसको हम पोलिएस्टर बोलते हैं. सो फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली. वॉट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ पोलिएस्टर? पोलिएस्टर के क्लोथ्स आजकल बहुत आते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसके जो कपड़े होते हैं वो रिंकल नहीं होते. जैसे अगर आप हम कॉटन क्लॉथ की बात करेंगे तो उनको बार बार हमें आयरन करना पड़ता है, ठीक है, वॉश करते वो रिंकल्ड हो जाते हैं. तो लेकिन जो पोलिएस्टर के क्लोथ्स होते हैं वो रिंकल नहीं होते हैं, ठीक है. एंड इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इट इज़ ईजी टू वॉश करना भी ईजी होता है. एंड इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए भी अच्छा फैब्रिक होता है, ठीक है. तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें पोलिएस्टर में, सो एग्जाम्पल ऑफ पोलिएस्टर इज़ टेरिलीन. टेरिलीन इज़ अ फैब्रिक दैट इज़ अ पोलिएस्टर. ओके, दैट इज़ वेरी पॉपुलर. एंड पीईटी की आपने बॉटल्स देखी होंगी, प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती हैं, दैट मटेरियल इज़ पीईटी. और यूटेंसिल्स, बर्तन देखे होंगे, फिल्म्स देखी होंगी. फिल्म्स वो जो थिएटर में आती हैं वो वाली फिल्म्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लेयर की बात हो रही है, ठीक है. वायर्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ऐसा लगता है कि प्लास्टिक की हैं, बट एक्चुअल जो उसका मटेरियल होता है दैट इज़ पीईटी. ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो अ पोलिएस्टर. सो पोलिएस्टर इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कार्ड एंड एस्टर. जो एस्टर होता है उसकी वजह से ही फ्रूट्स के अंदर उनकी स्मेल होती है. ओके, फ्रूट्स की जो स्मेल होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ एस्टर. ओके, सो इट कैन बी ऑब्टेन नेचुरली ऑल्सो एंड इट कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली ऑल्सो. एंड कई बार आपने सुना होगा पॉलीकोट एक फैब्रिक है जिसमें पोलिएस्टर और कॉटन को मिक्स किया गया है, ठीक है. अगर हम पोलिएस्टर और कॉटन को मिक्स करके फैब्रिक बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड पॉलीकोट. पॉलीवूल मीन्स पोलिएस्टर प्लस वूल. टेरिकोट मीन्स टेरिलीन इज ऑल्सो पोलिएस्टर प्लस कॉटन इज मिक्सड. ओके, इस तरह से पोलिएस्टर के साथ दूसरे नेचुरल फाइबर्स को मिक्स करके भी क्लोथ्स बनाए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ एक्राइलिक. अगर आपने बाहर से वुलन स्वेटर ख़रीदी है कभी, देखो एक तो घर पे बनती है लेकिन आजकल घर पे ज़्यादा चलती नहीं है बनी हुई, मतलब आजकल कोई पहनता नहीं है. अगर जब हम बाहर से, जैसे आप स्कूल की अपनी स्वेटर ख़रीद के लाते हैं बाहर से, तो जो उसका मटेरियल होता है दैट इज़ एक्राइलिक मटेरियल. ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो आर्टिफिशियल. सो द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स. देखो जो आप नेचुरल सोर्स से जो वूल मिलती है, शीप से मिलती है, याक से मिलती है, वो जो वूल होती है दैट इज़ एक्सपेंसिव, वो महंगी होती है. लेकिन तो उसका ऑल्टरनेट हमारे पास क्या है? एक्राइलिक है, ठीक है. क्योंकि एक्राइलिक जो है वो भी हमें गर्मी देता है, वो हमें हीट देता है. और दूसरा क्या है उसका एडवांटेज क्या है? दैट इज़ चीप, वो सस्ता है. ओके, जो एनिमल वूल है दैट इज़ कॉस्टली, बट एक्राइलिक दैट इज़ अ सिंथेटिक मटेरियल बट दैट इज़ वर्किंग द सेम एज वूल, इट इज़ चीप. सो दीज आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स. दूसरा क्या है? बहुत सारे कलर्स में एक्राइलिक अवेलेबल होता है. सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा टाइम तक चलते हैं और अफोर्डेबल होते हैं. अगर हम कॉस्ट वाइज बात करें सो दीज आर अफोर्डेबल, सो विच मेक्स दैम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स. ओके, इसीलिए नेचुरल फाइबर्स से ज़्यादा पॉपुलर होते हैं. सो सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग. अगर आप सिंथेटिक फाइबर्स को हीट करोगे, अगर आप कोई उसके एक थ्रेड को हीट करके देखोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है. दिस इज़ द डिसएडवांटेज. तो ये एक कमी होती है सिंथेटिक फाइबर्स की. इसीलिए कभी भी सिंथेटिक फाइबर्स पहन के आपको फायर के आसपास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो क्लोथ्स होते हैं बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हैं और एंड दिस कैन बी वेरी डेंजरस. ओके, एंड द जो फैब्रिक जो होगा वो मेल्ट हो जाएगा. मेल्ट होके वो क्या करेगा? आपकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा. जिस भी पर्सन ने वो सिंथेटिक फाइबर पहना होगा, ठीक है, और वो आग के पास जाता है तो वो मेल्ट होके बॉडी के ही चिपक जाएगा. एंड सो वी शुड नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन लैब. ओके, so we can prefer wear cotton clothes instead.
and all the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin. जितने भी synthetic fibers होते हैं उसमें petroleum origin के कुछ materials यूज़ होते हैं, जैसे लास्ट स्लाइड में हमने देखा था जैसे नायलॉन था, नायलॉन के अंदर भी कोल का इस्तेमाल हुआ था. सो इस तरह से कोई ना कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ होता है, इसीलिए सभी सिंथेटिक फाइबर्स को हम पेट्रोकेमिकल्स भी बोलते हैं. मतलब पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ होता है सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए. ओके, सो दिस वाज एक्राइलिक. सो हमने अभी चारों सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में देखा. तो हम देखेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं सिंथेटिक फाइबर्स की. सी सिंथेटिक फाइबर्स पोजेस यूनिक करेक्टरिस्टिक विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़. देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. एक तो दे ड्राई अप क्विकली, वो जल्दी सूख जाते हैं. ठीक है, जैसे सर्दी का मौसम है या बारिश का मौसम है, कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं. तो अगर हम कॉटन कम क्लोथ्स की बात करेंगे तो उसको सूखने में, ड्राई होने में ज़्यादा टाइम लगेगा. बट दीज सिंथेटिक फाइबर्स दीज ड्राई अप वेरी क्विकली, ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, लेस एक्सपेंसिव, कॉस्टली नहीं होते हैं, अवेलेबल होते हैं हर जगह पे, और मेंटेन करना इजी होता है, बार बार आयरन नहीं करना पड़ता. ठीक है, और ना ही इन पर इंसेक्ट्स अटैक करते हैं. जो नेचुरल फाइबर्स हैं उन पर इंसेक्ट अटैक कर देते हैं, तो हमें उन्हें संभाल के रखना पड़ता है. तो सिंथेटिक फाइबर्स को मेंटेन करना, हैंडल करना इजी होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है जिससे आपको डिफरेंस समझ में आएगा नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स में. यहाँ पे क्या एक्टिविटी है, ये आप घर पे बहुत ईजिली कर सकते हो. दैट इज़ अ वेरी सिंपल एक्टिविटी. वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक 2 क्लॉथ पीसेज ऑफ सेम साइज़. ठीक है, सेम साइज़ के आपको 2 क्लॉथ पीसेज लेने हैं. ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर का, 2 स्क्वायर मीटर का, जितना आपको लेना है आप ले सकते हो. ठीक है, सो वन ऑफ दो शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर. एक क्लोथ जो आपको लेना है दोनों में से वो एक नेचुरल फाइबर का, जैसे आप सपोज आप कॉटन ले लेते हो, और दूसरा जो है सिंथेटिक फाइबर होना चाहिए. ठीक है, दोनों तरह के क्लोथ्स आपके घर में इजीली अवेलेबल होंगे. तो आपको क्या करना है, 2 बकेट्स लेनी है या मग लेने हैं, और दोनों के अंदर उन पीसेस उसमें पानी डाल के, उन जो आपने 2 फैब्रिक्स लिए हैं दोनों को अलग अलग आपको पानी में सोक कर देना है, भिगा देना है. ठीक है, तो जब आप उनको बाहर निकालोगे थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट के बाद दोनों कपड़ों को बाहर निकालो. ठीक है, और उनको तार पे सुखा दो, या मतलब सूरज की रोशनी में, धूप में उनको सुखा दो. ठीक है, एंड कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर. और दोनों कंटेनर में नोट करो कि कितना पानी बचा है, किस में ज़्यादा बचा है. सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, जिसमें आपने कॉटन क्लॉथ डाला था, कॉटन क्लॉथ जो होगा उस कंटेनर के अंदर, उस मग के अंदर पानी कम बचा होगा, क्योंकि कॉटन क्लॉथ की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, मतलब जो पानी को सोखने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है. ठीक है, तो वो ज़्यादा पानी को सोखेगा. बट सिंथेटिक फाइबर की अगर आप बात करोगे तो जिस बकेट में, जिस मग में आपने सिंथेटिक फाइबर डाला है उसमें आपका पानी ज़्यादा बचेगा, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है दैट इज़ लोअर देन द नेचुरल फाइबर्स. ठीक है, तो वो कम पानी को एब्जॉर्ब करते हैं. सो दिस इज़ गुड. पानी, कपड़े धोने के लिए पानी भी हमारा बचेगा इफ़ वी विल यूज़ द सिंथेटिक फाइबर्स. ओके, सो दिस वाज द एक्टिविटी. और जब आप उसको सुखाओगे तो जो आपका सिंथेटिक फाइबर है दैट विल ड्राई अप क्विकली. ओके, और जो आपका कॉटन फाइबर, नेचुरल फाइबर का जो फैब्रिक है उसको ड्राई अप होने में ज़्यादा टाइम लगेगा. ओके, सो हियर द क्वेश्चन इज़, do synthetic fabrics soak less or more water than the natural fabrics? So the answer is synthetic fabrics soak less water. Okay, do they take less or more time to dry? They take less time to dry. What does this activity tell you about the characteristic of synthetic fabrics? From this activity we can conclude that synthetic fibers has very low water retention capacity. Okay, so these are better to use than natural fibers. Okay, so this was the topic of synthetic fibers. नाउ विल सी व्हाट आर प्लास्टिक्स. हम प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. प्लास्टिक आपने सबने देखे होंगे, आपके घर में बहुत सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं वो प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं, चाहे वो कंटेनर हो, आपकी चेयर हो, बकेट हो, मग हो, टॉयज़ हो, बहुत सारी चीज़ें हैं. प्लास्टिक के बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन कर ही नहीं सकते. राइट, सो हम यहाँ पे प्लास्टिक की बात करते हैं. सी प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर. मैंने आपको बताया मैनी स्मॉल यूनिट्स
रिपीटिंग यूनिट्स मेक ए चेन, बिग चेन, दैट इज़ अ पॉलीमर। तो प्लास्टिक भी एक पॉलीमर होता है सिंथेटिक फाइबर के जैसे, ठीक है। और देखो प्लास्टिक, देखो मैंने आपको बताया मोनोमर्स से मिलके पॉलीमर्स बनते हैं। तो प्लास्टिक के अंदर जो अरेंजमेंट होती है, जो चेन होती है, वो दो तरह से हो सकती है। लीनियर हो सकती है, देखो जैसे ये मोनोमर्स हैं, सपोज ये कंबाइन करें, ठीक है, तो ये क्या एक लाइन के अंदर है ये चेन। तो इस तरह की अगर अरेंजमेंट है, लाइन में है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट। और अगर इस तरह से अरेंजमेंट है, सी so if you will see this type of arrangement, so this is called cross linked arrangement, okay, cross linked, बिकॉज ये क्या है, इसमें दो तीन चेन्स आपस में लिंक हो रही हैं, सो हम इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। तो प्लास्टिक बनाने के लिए इस तरह की मोनोमर्स की अरेंजमेंट होती है, ओके। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस, मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें हैं, पेन से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ प्लास्टिक में मिल जाती है आजकल। एंड द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल। इतनी सारी वैरायटी की चीज़ें, इतनी सारी शेप्स की चीज़ें प्लास्टिक में कैसे मिल जाती हैं? द आंसर इज़ प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल। प्लास्टिक को आप किसी भी शेप में, किसी भी फॉर्म में मोल्ड कर सकते हो, कोई भी शेप में आप उसको मेल्ट करके कोई भी शेप में आप कोई भी शेप उसको दे सकते हो, ठीक है। एंड दूसरी प्रॉपर्टी क्या है प्लास्टिक की? प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल किया जा सकता है, ठीक है। प्लास्टिक को मेल्ट करके दोबारा कोई और चीज़ बनाई जा सकती है। नेक्स्ट इज़ री यूज़ आप कर सकते हो। सपोज़ आप बाहर से कोई जूस खरीद के लाते हो प्लास्टिक बॉटल के अंदर, तो वो प्लास्टिक बॉटल आप री यूज़ कर सकते हो। कलर्ड प्लास्टिक को आप कलर कर सकते हो, कोई भी आपके फेवरेट कलर्स में मेल्ट कर सकते हो, रोल कर सकते हो, शीट्स बना सकते हो, उसकी वायर्स बना सकते हो, ठीक है। तो प्लास्टिक के बहुत सारे यूजेस होने की वजह से प्लास्टिक को आजकल हर जगह पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर हम पॉलीथीन की बात करें, पॉलीथीन बैग्स होते हैं ना, पॉलीथीन, देखो पॉलीथीन आपको इसके नाम से पता चल रहा है, पोली प्लस इथीन। पोली मीन्स मैनी यूनिट्स, इथीन मतलब इथीन यहाँ पे क्या है, मोनोमर है, और इथीन जो केमिकल है उसकी बहुत सारी यूनिट्स जब कंबाइन हो जाती हैं तो क्या बन जाता है, पॉलीथीन बन जाता है, ठीक है। तो पॉलीथीन भी प्लास्टिक का ही एक एग्जाम्पल है, और ये पॉलीथीन बैग्स बनाने में काम आता है, ठीक है। सो नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है। प्लास्टिक दो तरह से होते हैं, दीज आर थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखो आपको नाम से पता चलेगा, थर्म वर्ड, जहाँ पे ये थर्म वर्ड आता है, थर्म का मतलब होता है हीट, आपने थर्मल वर्ड सुना होगा, तो थर्म जहाँ पे वर्ड आ गया हीट। थर्मोप्लास्टिक मतलब कि जो प्लास्टिक को हीट करके और वो पिघल गया, मेल्ट हो गया, फिर उसको हम कोई भी शेप दे देते हैं, उस प्लास्टिक को हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, ओके। नेक्स्ट होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखो थर्मो मतलब हीट, सेटिंग मतलब सेट हो जाना, एक शेप उसकी बन जाना। तो ऐसे प्लास्टिक जिसको एक बार हीट अप करके, ठीक है, एक बार मेल्ट करके हमने कोई शेप दे दी, ठीक है, उस शेप देने के बाद हम उसको दोबारा से मेल्ट करके दूसरी शेप नहीं दे सकते, वो सेट हो जाता है उस शेप पे, ठीक है। तो ऐसे प्लास्टिक्स को बोलते हैं हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ओके। तो हम देखेंगे एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपकी वाटर बॉटल होती है, दैट इज़ अ थर्मोप्लास्टिक। आप उसमें कुछ भी गर्म पानी डाल के देखो तो वो आपको लगेगा कि वो मेल्ट हो रही है, थोड़ा से सॉफ्ट हो जाएगी, है ना। सो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। अगर हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें तो आपके घरों में ही होता है ये भी, जो आपके स्विच बोर्ड्स के स्विचेस होते हैं, कोई भी स्विच अगर आपके घर पे एक्स्ट्रा रखा होगा या ख़राब होगा, ठीक है, जिससे आप फ़ैन या लाइट को ऑन ऑफ करते हो, उस स्विच की बात कर रही हूँ मैं, तो वो स्विच को आप मेल्ट करने की कोशिश करो, हीट अप करने की कोशिश करो, वो मेल्ट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो उस शेप पर फिक्स हो गया है। तो ऐसे प्लास्टिक को हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ओके। सो लेट्स रीड अबाउट दीज प्लास्टिक्स। सो द प्लास्टिक्स विच गेट डीफॉर्म्ड मतलब शेप चेंज कर लेते हैं, ईजिली ऑन हीटिंग, हीट करने पे इजीली अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, ठीक है, और इजीली बेंट हो जाते हैं। दीज आर कॉल्ड द थर्मोप्लास्टिक्स। लाइक पॉलीथीन का एग्जांपल हो गया, पॉलीथीन आप देखोगे मेल्ट होता है वो। पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ओके। जितने भी फैब्रिक्स होंगे, जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, इनके आगे ये पॉली वर्ड ज़रूर आएगा, बिकॉज दीज आर द पॉलीमर्स, ओके। सो पॉलीविनाइल क्लोराइड, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। सो
ये आपके थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जांपल्स हैं, और इनसे जो पॉलीथीन है, पीवीसी है, इनसे टॉयज़ बनाए जाते हैं, कॉम्स बनाई जाती हैं, और बहुत सारे तरह के कंटेनर्स लाइक बॉटल्स, लंच बॉक्सेस वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। एंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस, एक बार जिन प्लास्टिक को मोल्ड कर दिया उनको दोबारा हीट हम नहीं, मतलब हीट करेंगे तो वो सॉफ्ट नहीं होंगे। इस तरह के प्लास्टिक्स को हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, एंड टू एग्जांपल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ये आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के एग्जांपल्स हैं, बेकेलाइट एंड मेलामाइन, जो आपके स्विचेस होते हैं, मैंने आपको बताया। बेकेलाइट जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, जैसे देखो मैंने आपको बताया जो उसको हीट करेंगे तो वो मेल्ट नहीं होगा, सो इट इज़ पुअर कंडक्टर। ओके, सो इसीलिए इससे इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल स्विचेस कौन से प्लास्टिक से बनाए जाते हैं? बेकेलाइट, दैट इज़ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, आपके जो बर्तन रहते हैं, बर्तन के जो हैंडल्स होते हैं, दैट आर ऑल्सो मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। जो मेलामाइन है, मेलामाइन कहाँ यू देखो, मेलामाइन जो है वो उससे वो फायर को कैच नहीं करता, ठीक है, और वो हीट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट को टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। दूसरे प्लास्टिक्स के बजाय अगर हम बात करें तो इससे फ्लोर टाइल्स बनाई जाती हैं, किचन वेयर्स बनाए जाते हैं। किचन वेयर्स, आपने जो माइक्रोवेव के कंटेनर्स देखे होंगे, जो आप माइक्रोवेव में रखते हो, माइक्रोवेव में क्या हीट होती है लेकिन वो मेल्ट नहीं करते हैं ना, सो दिस इज़ ऑल्सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फैब्रिक्स, कुछ ऐसे फैब्रिक्स भी बनाए जाते हैं मेलामाइन से, जिससे आग ना लगे। जैसे अगर हम बात करेंगे जो आग बुझाने वाले होते हैं, ठीक है, जो फायर एक्सटिंग्विश करते हैं, उनकी जो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, तो उसमें भी मेलामाइन का कुछ पार्ट होता है, ठीक है। सो these are thermoplastics and thermosetting plastics. I hope you have understood this. So देखो, प्लास्टिक्स आप कहीं पे भी अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते प्लास्टिक के बजाय। तो प्लास्टिक जो है, दीज आर अवर चॉइस इन एवरीथिंग, ठीक है, बिकॉज वी कैन नॉट इग्नोर द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स। क्यों ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते प्लास्टिक के बिना? हम जहाँ देखेंगे कोई भी चीज़ है प्लास्टिक से बनी हुई है। देखो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लास्टिक की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से ये वाइडली यूज़ किया जाता है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़, इट इज़ लाइट वेट होता है। अगर हम चेयर की बात करें, इफ़ यू विल कंपेयर अ प्लास्टिक चेयर और अ वुडन चेयर, या फिर स्टील, कोई भी और दूसरे एल्यूमिनियम को किसी भी और मटेरियल से कंपेयर करेंगे, तो प्लास्टिक की चेयर कंपैरेटिवली क्या होगी? हल्की होगी, लाइट वेट होगी, राइट। लोअर प्राइस, प्लास्टिक की चीज़ों का जो प्राइस होता है वो कम होता है, ठीक है। इफ़ यू विल टॉक अबाउट द लंच बॉक्स, प्लास्टिक और स्टील के अगर आप लंच की बॉक्स की बात करो तो प्लास्टिक के लंच बॉक्स का प्राइस क्या होगा? कम होगा, ठीक है। गुड स्ट्रेंथ अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होता है, और इजी हैंडलिंग, इजीली आप उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। और लाइट होता है मेटल से, तो इसलिए उसको कार्स, एयरक्राफ्ट्स और स्पेस क्राफ्ट्स बनाने के लिए भी, कुछ पार्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, वो लिस्ट ख़त्म ही नहीं हो सकती हमारी। इतनी सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनती हैं, वी कैन नॉट इमेजिन, मतलब हम काउंट करते थक जाएंगे, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हमारे मन में आती जाएंगी कि ये भी प्लास्टिक से बनती है, ये भी प्लास्टिक से बनती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं? सी, प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, एंड दिस इज़ द बेस्ट प्रॉपर्टी। अगर आप आयरन की बात करोगे, कोई भी चीज़ है, कंटेनर है, ठीक है, आयरन का बना हुआ है या कोई भी मेटल का बना हुआ है, तो वो क्या करेगा? वाटर और एयर से रिएक्ट कर जाएगा, धीरे धीरे वो कोरोड होना लग जाएगा। जैसे कि आपकी कॉपर बॉटल्स होती हैं, थोड़े टाइम में क्या होता है, वाटर बॉटल्स, उनका कलर चेंज होने लग जाता है, बिकॉज दीज रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, बट प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, ठीक है, इट डजेंट रिएक्ट विद एनीथिंग, तो इसीलिए वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा चलता है, इसलिए हम प्लास्टिक को यूज़ करते हैं। वाई? बिकॉज इट डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर, ठीक है। एंड दीज आर नॉट कोरोडेड इजिली, तो उन पे जंग भी नहीं लगता है, वो कोरोड नहीं होते हैं, ओके। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटीरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स स्टोर करने के लिए भी प्लास्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, प्लास्टिक इज़ लाइट वेट, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, ठीक है, एंड इट कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, ओके। बहुत सारी शेप्स और साइजेस में इसको किसी भी शेप में मोल्ड कर दो और उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? इट इज़ चीपर देन मेटल्स, सस्ता होता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको इंडस्ट्रीज़ में या घरों में बहुत ज़्यादा चीज़ों में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बहुत सारी प्लास्टिक की चीज़ें हम यूज़ करते हैं। एंड लास्ट प्रॉपर्टीज़, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स
पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप मेटल के, कोई भी मेटल के एक सिरे को अगर आप गर्म कर दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, आप दूसरा जो उसका हिस्सा होगा वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। बट प्लास्टिक के केस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज दीज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, सो इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो दीज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू द प्लास्टिक। इसीलिए ही आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की लेयर होती है, प्लास्टिक की कोटिंग होती है। आप उसको टच करोगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज उनके अंदर प्लास्टिक के थ्रू करंट पास नहीं करता है। ठीक है, सो दैट्स वाई प्लास्टिक को है हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल कवरिंग्स, वायर्स वगैरह की कवरिंग बनाने के लिए। अगर प्लास्टिक इज़ ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए हम उसको बहुत सारे जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, उनके जो हैंडल होते हैं, आप देखोगे आपके घरों में, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो आपके केटल का हैंडल है या कुकर का हैंडल है, ठीक है, जितने भी आपके कुकिंग यूटेंसिल्स है सबके जो हैंडल होंगे वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। ठीक है, क्यों बने हुए होते हैं? बिकॉज प्लास्टिक को आप टच करोगे तो आपको गर्म नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ heat. Okay, so plastic is poor conductor of heat and electricity. Uses of plastic. There are many uses of plastic. इतने सारे uses हैं प्लास्टिक के, we cannot imagine. So आपको कुछ uses मैं आपको बता रही हूँ. See, in healthcare industry, how plastic is used in healthcare industry. देखो जो टेबलेट्स जो होती हैं, आपकी दवाइयाँ होती हैं, उसकी पैकेजिंग that is made of plastic. ठीक है, स्टिचिंग वॉन्ड्स, कई बार टांग के लगाए जाते हैं, आपको कई बार चोट लग जाती है जिसकी वजह से, तो जो स्टिचिंग वॉन्ड्स जो धागा होता है, वो थ्रेड होता है, दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक। जो आपके सिरिंज होते हैं, इंजेक्शंस जो होते हैं, वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं, उनका जो कवर देखोगे आप। डॉक्टर्स के जो ग्लव्स होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो प्लास्टिक। और बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिनमें प्लास्टिक का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। ठीक है, देयर आर मैनी यूजेस। एंड अगर हम कुकवेयर्स की बात करें, कुछ ऐसे प्लास्टिक के कुकवेयर्स बनाए जाते हैं जो माइक्रोवेव ओवन्स में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन्स के अंदर वो कुकवेयर्स जो होते हैं, वो जो कंटेनर्स होते हैं, वो हीट अप होते हैं, लेकिन उनसे मतलब वो मेल्ट नहीं होते हैं। इस तरह के कंटेनर्स वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, आपने टेफ्लॉन सुना होगा एक वर्ड। टेफ्लॉन भी एक प्लास्टिक है जिस पर ऑयल और वाटर नहीं चिपकता है। आजकल आपने कुछ यूटेंसिल, बर्तन, कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं वो ऐसे देखे होंगे जिनको हम बोलते हैं नॉन स्टिक कोटिंग, है ना, जिस पर कुछ चिपकता नहीं है, हम बनाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड नॉन स्टिक कोटिंग। तो वो जो नॉन स्टिक कोटिंग होती है, उसके ऊपर जो एक लेयर होती है नॉन स्टिक की, वो किस चीज़ की होती है? वो लेयर होती है टेफ्लॉन की। ओके, टेफ्लॉन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, फायर प्रूफ प्लास्टिक्स होते हैं, मैंने आपको बताया। जो यूनिफॉर्म्स होती हैं फायरमैन की, उसके ऊपर मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग होती है। ठीक है, जिससे, क्योंकि मेलामाइन क्या होता है, फ्लेम फायर रेजिस्टेंट होता है, तो उसकी वजह से उनकी जो यूनिफॉर्म होती है उस पर मेलामाइन की कोटिंग की जाती है, दैट इज़ ऑल्सो अ प्लास्टिक। ठीक है, उनको फ्लेम से बचाने के लिए। ओके, सो दीज वर द यूजेज ऑफ प्लास्टिक्स। अब हम देखेंगे, हम प्लास्टिक को इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बट प्लास्टिक जो है ना, उसका एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल, डेंजरस इफेक्ट होता है। तो हम देख रहे हैं प्लास्टिक किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। सो देखो, डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है दैट इज़ द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक। आपने प्लास्टिक को यूज़ कर लिया और फिर उसको फेंक दिया, लेकिन उसको डिस्पोज करना, जो उसका कचरा होता है, एक तरह से गार्बेज जो होता है प्लास्टिक का, उसको डिस्पोज किस तरह से किया जाए, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, कैसे, मैंने आपको बताया था इन प्रीवियस यूनिट्स, जैसे अगर आप कोई किचन वेस्ट है आप फेंक देते हो तो वो थोड़े दिन में वहाँ से गायब हो जाता है, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर एक्ट करते हैं और उसको डीकम्पोज कर देते हैं, कम्प्लीटली ख़त्म कर देते हैं। लेकिन प्लास्टिक के केस में ऐसा नहीं होता। प्लास्टिक को अगर आप कहीं पे रखोगे, फेंक दोगे ग्राउंड पे, तो वो सालों साल वहीं रखा रहेगा, बिकॉज इट कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो, देयर आर टू टर्म्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंसेस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको डिकम्पोज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट से। ठीक है, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जिन पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट नहीं कर सकते, जो डिकम्पोज नहीं होते, जो एनवायरनमेंट से ख़त्म नहीं होते। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट हमारे एनवायरनमेंट में इकट्ठा हो जाता है, बिकॉज इट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड। और वो प्लास्टिक वेस्ट क्या करता है फिर, अब वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान करता है।
इसीलिए एनवायरनमेंट के लिए प्लास्टिक जो होते हैं दीज आर हार्मफुल, ठीक है। और जो प्लास्टिक होते हैं बहुत 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 साल लेते हैं डिकम्पोज होने के लिए। फाइनली वो डिकम्पोज होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सालों में, 100-200 सालों में अगर वो डिकम्पोज होंगे तो उसका क्या फ़ायदा। और हम प्लास्टिक इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि जो प्लास्टिक का गार्बेज है, जो वेस्ट है, वो बढ़ता ही जाएगा, राइट। तो जो प्लास्टिक होता है दैट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, तो एनवायरनमेंट को नुकसान करता है प्लास्टिक। एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी होता है उससे। एनवायरनमेंट पोल्यूशन कैसे होता है? प्लास्टिक वेस्ट को ख़त्म करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक को जला देते हैं। उसको जलाने से बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं। हार्मफुल गैसेस क्या करती हैं, आपका एयर पोल्यूशन करती हैं, तो एनवायरनमेंट में क्या होगा, पोल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें टाइप ऑफ वेस्ट लिखा हुआ है और उनको डीजनरेट होने में कितना टाइम लगता है, मतलब डीकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है। और फिर हम बताएंगे कि जो ये मटेरियल है ये बायोडिग्रेडेबल होगा या नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, ओके। सो फर्स्ट इज़ पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लेफ़्ट ओवर फूड स्टफ़, जो आपका बचा हुआ खाना है या वेजिटेबल पील्स वगैरह हैं, तो वो 1 से 2 हफ्तों के अंदर डीजनरेट हो जाते हैं। सो इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ओके। नेक्स्ट अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर को 10 से 30 दिन लगते हैं डीजनरेट होने में, सो इट इज़ ऑल्सो अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। कॉटन क्लॉथ टेक्स 2 to 5 months to degenerate, so it is also a biodegradable material. Wood takes 10 to 15 years to degenerate, it is also a biodegradable material. Woolen clothes takes about a year to degenerate, it is also biodegradable. Aluminium, tin or other metal cans, these take 100 to 500 years, so these are non biodegradable, okay. And last is our plastic bags take several years, okay, so these are also non biodegradable, okay. So like this, plastics are not environment friendly because these cannot be degenerated in a small time, ठीक है। so ये हो गया हमारा, हम उसको डीजनरेट नहीं कर पाते हैं। दूसरा, अगर हम उनको जला देते हैं तो उससे क्या होता है, मैंने आपको बताया, हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। तो इस तरह से प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हैज़ार्ड्स कॉज्ड बाय प्लास्टिक से क्या क्या नुकसान होते हैं। मतलब देखो, पहले मैंने आपको बताया एयर पोल्यूशन होता है उससे, ठीक है। अगर हम उनको बर्न कर देंगे तो उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा, ठीक है, पोल्यूशन होगा। सो दिस इज़ द हैज़ार्ड, एक ये प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं वो एनिमल्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक कर देते हैं। अगर आपने देखा होगा कई बार बहुत ज़्यादा गार्बेज एनवायरनमेंट में कलेक्ट हो जाता है, हमारे आसपास बहुत ज़्यादा गार्बेज कलेक्ट होता है और कई बार एनिमल्स उस गार्बेज में से कुछ खाने के लिए, कुछ जैसे गायें वगैरह हो गई, तो आपने देखा होगा जो स्ट्रीट्स जैसे स्ट्रीट्स में घूमती रहती हैं, वो गार्बेज के में से कुछ खाने का सामान ढूंढते ढूंढते प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं, पॉलीथीन बैग्स होते हैं, वो अपने मुंह में ले जाती हैं, खा जाती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो चोक हो जाता है। चोक का मतलब बंद हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो मर भी सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हैज़ार्ड, मतलब ये हार्मफुल हो गया उनके लिए प्लास्टिक जो है, और क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है प्लास्टिक, है ना। और जो पॉलीथीन्स होते हैं, पॉली बैग्स जो होते हैं, वो इधर उधर कोई भी फेंक देता है या फिर वो हवा से उड़ के भी इधर से उधर चले जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो ड्रेन्स होती हैं, नालियाँ होती हैं, वो भी रुक जाती हैं, क्लॉग हो जाती हैं, ठीक है। और एयर पोल्यूशन भी होता ही है, ठीक है। सो दीज आर द हैज़र्ड्स दैट आर कॉज्ड बाय द प्लास्टिक। सो प्लास्टिक इज़ हार्मफुल फॉर अवर एनवायरनमेंट, ओके। सो नेक्स्ट आवर पॉइंट इज़ हाउ टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, ओके। तो प्लास्टिक के अगर इतने नुकसान हैं और हम हर चीज़ में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, तो हम प्लास्टिक के यूज़ को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स सी, अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक के यूज़ को अवॉइड करके, जितना हो सके हम अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करके। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट, जो हम बाहर ग्रोसरीज लेने जाते हैं तो हम प्लास्टिक के बैग्स के बजाय हम कॉटन या जूट के बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। द बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली। अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग डस्टबिन में कलेक्ट करेंगे और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग कलेक्ट करेंगे तो वो
बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के साथ मिक्स नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो एनिमल्स हैं वो गलती से प्लास्टिक को नहीं खाएंगे और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को हम अलग से यूज़ कर सकते हैं, उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, जो आपका प्लास्टिक वेस्ट है हम उसे रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब कि दोबारा से मेल्ट करके उसे दूसरी शेप में देके मतलब उसको दोबारा से हम यूज़ करने लायक नई चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं मोस्टली जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं जिनको हम मेल्ट करके शेप दे सकते हैं उनको रिसाइकल किया जाता है, ठीक है। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर द 4 R's प्रिंसिपल, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ 4R प्रिंसिपल, ओके। तो 4R प्रिंसिपल आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है, रिड्यूस का मतलब है प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल कम करना, रीयूज़ का मतलब है दोबारा से इस्तेमाल कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया कोई भी बॉटल, जैसे आपका जूस की बॉटल होती है, वो आप जूस लेकर आते हो, फिर वो जूस खत्म हो जाता है तो आप उस बॉटल को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो, दिस इज़ कॉल्ड रीयूज़। रिसाइकल, आई टोल्ड यू, रिसाइकल करके प्लास्टिक को दूसरी दोबारा से चीज़ें बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट इज़ रिकवर, ठीक है, रिकवर करके मटीरियल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द 4R प्रिंसिपल that will help to reduce the use of plastic, okay. So students, that was your chapter. So let's see what we have learnt. Here are some important words I have written. First is acrylic is a synthetic fiber, okay, that is similar to the wool. Artificial silk, that is rayon is also synthetic fiber. Nylon is also synthetic fiber. The fibers, these are very strong, okay. Plastic is a polymer, okay. Polyester क्या होता है, polyester is a synthetic fiber that has ester as monomer, okay. Polymer is a chain of monomers, of repeating units of monomers, okay, and that is synthetic, that is made up of chemicals. Polythene is a type of plastic, poly plus ethene, okay. Rayon is artificial silk and it is artificial or synthetic fiber. Synthetic fibers are those which are man-made and which are made by chemicals. Terylene is a polyester, okay. Thermoplastics are those plastics which can be molded into different shapes. Thermosetting plastics are those which cannot be melted, okay. So some important points here. Synthetic fibers and plastics, like natural fibers, are made up of very large units called polymers. Polymers are made up of many smaller units called monomers, okay. While synthetic fibers are obtained from plants and animals, synthetic fibers are obtained by chemical processing of petrochemicals, okay. And these fibers can also be woven into फैब्रिक्स, इनके भी फैब्रिक्स बनाए जाते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स फाइंड यूजेस रेंजिंग फ्रॉम मैनी हाउस होल्ड आर्टिकल्स. सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या यूजेस होते हैं, रोप्स बनाने में, बकेट्स, फर्नीचर, कंटेनर्स वगैरह बनाने में सिंथेटिक फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है. एंड दीज आर ऑल्सो यूज इन मेकिंग एयरक्राफ्ट, शिप्स, स्पेस क्राफ्ट, हेल्थ केयर एक्सेट्रा. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ केमिकल्स यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स, these are called rayon, nylon, polyester and acrylic. These are the synthetic fibers, okay. So next point is the different types of fibers differ from one another in their strength, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, नेचर ऑफ बर्निंग, कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी एक्सेट्रा. जितने भी फाइबर्स होते हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो डिफ़र करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ठीक है. एंड इन टुडेज़ लाइफ इफ वी विल टॉक अबाउट द प्लास्टिक्स, लाइफ विदाउट प्लास्टिक कैन नॉट बी इमेजिन्ड, बी इट होम और आउटसाइड, anywhere plastic is everywhere, okay. And the waste created by plastic is not environment friendly, okay. On burning plastic, it releases poisonous gases that cause air pollution, and we cannot dump the plastic because it will take many years to degenerate because it is non-biodegradable, okay. And we need to use synthetic fibers and plastics in such a manner that we can enjoy their good qualities also, and at the same time we can minimize the environmental hazards for the living communities. Okay, clear to you? So students, this was your chapter. I hope you have enjoyed the session. That was a bit longer, but it is okay. It has only one part, okay. And there is no second part for this chapter, okay. So thank you. I'll come with the next chapter soon. Bye bye, take care.